تھا۔ انہی 72 میں شیر خدا کا شیر امام حسین بھی ہے، انہی 72 میں حضرت عباس بھی ہیں، انہی 72 میں حضرت عباس کے جو 4 بھائی تھے۔ ایسے ایسے شہزادے تھے مولا علی کے جو تنہا کئی ہزار کے لیے کافی تھے۔ آپ جانتے ہو شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا، جس کے باپ نے مرہب یہودی کی گردن کو کاٹا، جس کے باپ نے عمر ابن بدھ کو پچھاڑا، اسی کا شیر میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ آقا حسین کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھے بلکہ مختار تھے۔ حسین مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مختار کا نام ہے۔ میں آقا حسین کی اگر آپ کو کرامت بتا دوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا حسین نے اپنے والد کے ساتھ جنگیں لڑی تھی، وہ جنگ کے طریقے جانتے تھے، وہ جنگ کے حالات جانتے تھے، وہ جنگ لشکر دیکھ کر کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کس کربٹ جانے والا ہے۔ آقا حسین نے جو مین خیمہ تھا ازواج کا اور مستورات کا، اس خیمے کے چاروں طرف سے خندق کھدوائی اور خندق کھدوانے کے بعد اس میں آگ لگوا دی اور ایک راستہ چھوڑا آنے جانے کے لیے تاکہ کوئی دشمن پیچھے سے آ کر کے خیمے پہ حملہ نہ کر دے۔ آقا حسین کے پاس ایک یزیدی گھوڑا دوڑا کے آیا، بولا حسین جہنم کی آگ سے پہلے ہی تم نے دنیا میں آگ لگا لی معاذ اللہ۔ آقا حسین کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے، اے اللہ اسے آگ کا عذاب دے دے۔ اتنی دعا کرنا تھی حسین کی، ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں آئے تھے، اس کا گھوڑا بدکا اور اس کا پیر زین میں پھنس گیا۔ گھوڑا لے جا کر کے اسی آگ میں ڈال دیتا ہے اور وہ یزیدی وہیں جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ یزیدی آیا اور آ کر کے کہنے لگا حسین نہر فرات کا پانی دیکھ رہے ہو کیسے موجیں مار رہا ہے، کیسے لہریں مار رہا ہے۔ پرندے پیئیں انہیں اجازت ہے، جانور پیئیں انہیں اجازت ہے، درندے پیئیں انہیں اجازت ہے، تمہارے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ کون سی نہر فرات ہے؟ یہ وہی نہر فرات ہے۔ جب مولا علی شیر خدا خلیفہ تھے تو آپ دیکھو کوفے میں آپ کا دارالخلافہ تھا، مولا علی شیر خدا کے پاس کوفے کے لوگ آئے، بولے حضور فرات کا پانی بڑھتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرات کا پانی زیادہ بڑھ جائے اس میں سیلاب آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرات کا پانی کوفے تک پہنچ جائے، حضور کچھ کیجئے۔ مولا علی نے امام حسن کو ساتھ میں لیا، مولا علی نے امام حسین کو ساتھ میں لیا اور اپنا عصا ہاتھ میں لیتے ہیں، نہر فرات کے قریب جا کر کے اپنا عصا نہر فرات کی طرف کر کے کہتے ہیں مولا علی اے فرات کے پانی کم ہو جا۔ اتنا کہنا تھا مولا علی شیر خدا کا، فرات کا پانی کم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتنا ٹھیک ہے؟ کوفے والے بولے حضور اور کم کر دیجئے۔ آپ نے پھر عصے کا اشارہ کر کے کہا اے پانی کم ہو جا، پانی اور کم ہو گیا فرات کا۔ پھر کہا اب اتنا ٹھیک ہے؟ کوفے والے بولے حضور ابھی اور کم کر دیجئے۔ مولا علی نے اپنا عصے کا اشارہ کر کے فرمایا اے فرات کے پانی کم ہو جا۔ فرات کا پانی نیچے چلا گیا، فرمایا اب اتنا ٹھیک ہے؟ کوفے والے بولے ہاں اتنا ٹھیک ہے۔ دیکھو مولا علی شیر خدا نے اپنے بیٹے امام حسن کو ساتھ لیا ہے، امام حسین کو ساتھ لیا ہے اور فرات کے کنارے پہ فرات کا پانی نیچے کر کے اپنے بیٹے حسین کو بتا دیا اے میرے بیٹے حسین اس فرات کے اوپر کل بھی تیرے بابا کا قبضہ تھا، آج بھی تیرے بابا کا قبضہ ہے اور قیامت تک تیرے بابا کا قبضہ رہے گا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا وہ 22,000 یزیدیوں کا قبضہ صرف 3 دن کے لیے فرات کے پانی پر تھا۔ اس کے بعد سے آپ دیکھ لو کل بھی حسین کا قبضہ نہر فرات پر، آج بھی حسین کا قبضہ نہر فرات پر، قیامت تک حسین کا قبضہ نہر فرات پر رہے گا۔ وہ 22,000 یزیدیوں کی قبر آپ کو کربلا کے میدان میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی اور 72 حسینیوں کے مزار پر آج بھی حسینی پرچم لہرا کر کے نہر فرات کے کنارے پر یہی پیغام دے رہا ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے۔ تو وہ نہر فرات پر کل بھی میرے حسین کا قبضہ تھا، آج بھی میرے حسین کا قبضہ ہے اور صبح قیامت تک میرے حسین کا قبضہ رہے گا۔ آؤ ذرا دیکھو تاریخ اٹھا کر کے، اس نے کہا حسین ایک قطرہ بھی تمہارے خیمے میں پانی کا پہنچنے نہیں دیں گے۔ میرے آقا امام حسین نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، مولا اسے پیاسا مار دے۔ اتنی دعا کرنا تھی کہ اس کا گھوڑا بد کا پیر زین میں پھنسا، پورے میدان کربلا میں لے کے گھوڑا بھاگتا رہا۔ وہ العطش العطش
अतश, अल अतश की आवाज लगा रहा था, प्यास प्यास, मुझे प्यास लगी है। यजीदी मशकीज़ें लेकर उसकी तरफ दौड़े, पूरे पूरे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए, एक कतरा भी पानी का उसके हल्क में नहीं गया और वो ऐसे ही प्यासा पैर रगड़ करके मर गया। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। देख लो मैदान करबला में, हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। आज का बदअकीदा कहता है हुसैन अगर मालिक मुख्तार होते तो उनके बच्चे पानी के लिए तरसते रहे, उनके बच्चे प्यास से तड़पते रहे, वो पानी अपने खेमे वालों को क्यों नहीं पिला पाए? अरे जालिम तुझे क्या पता, ये काम तो हुसैन तो बहुत बड़ी बात है, ये काम तो हुसैन तो बहुत बड़ी जात है। हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों की शान देख लो, जिसे दुनिया वाले गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। पानी करबला में भी बंद है, पानी अजमेर में भी बंद है, वहां नवासे रसूल है, यहाँ अताए रसूल है। जब गरीब नवाज पे पानी बंद किया गया, हुसैन ने इस्तिकामत दिखाई, हुसैन ने साबित कदमी दिखाई, और जब गरीब नवाज पे बंद किया गया तो फरमाया मुरीद से जा एक कांसा लेकर के जा और पानी लेकर के आ अना सागर का। जब मुरीद पहुंचा कहा एक कांसा भर ले, कहा भर लो। जब कांसे को लगाया तो पूरे अना सागर का पानी उस प्याले के अंदर आ गया। पानी लेकर के मुरीद गरीब नवाज के पास आ गया। गरीब नवाज ने दुनिया वालों को बता दिया, देख लो मेरा बाबा मैदान करबला में मजबूर नहीं था बल्कि मुख्तार था। अरे जब उनके बेटों के बेटों की शान का ये आलम है कि पानी को अपने पास बुला सकते हैं, तो करबला में हुसैन की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल करबला के मैदान से हुआ, जवाब अजमेर में दिया जा रहा है। गरीब नवाज ने कैसा जवाब दिया है? आप कहोगे कि हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई? हुसैन चाहते तो नहर फुरात को अपने खेमे में बुला लेते, करामत क्यों नहीं दिखाई? तो सुनो ऐ टापर सरवा वालों, करामत किसे दिखाई जाती है? हुसैन का जो मुकाबला था वो इनसे था, दाढ़ी टोपी वालों से था, और जब दाढ़ी टोपी वालों से मुकाबला होता है तो करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत दिखाई जाती है। और गरीब नवाज का मुकाबला इनसे था, इसलिए गरीब नवाज ने करामत दिखा करके, आओ करामत देखो पढ़ो कलमा, करामत देखो पढ़ो कलमा। इसलिए गरीब नवाज ने पानी अपने पास बुला करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि मेरा बाबा करबला के मैदान में मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार था। और फारूक मदनापुरी ने कहा, पानी की बात और ना दाने की बात थी, पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात। माशाल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन मजबूर का नाम नहीं, हुसैन मुख्तार का नाम है। मैदान करबला में जब जंग के तरीके शुरू होते हैं, 9 मुहर्रम को लोग लश्कर लेकर आ गए यजीद की तरफ से। वो आए, अमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि हम आ गए लड़ने के लिए। आका हुसैन ने फरमाया, क्या कोई रात में भी जंग होती है? कहीं रात में भी लड़ाई होती है? ऐसा करो सुबह फैसला होगा, एक रात की मोहलत और दे दी जाए। यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, चलो और इनकी प्यास में इजाफा हो जाएगा। आका हुसैन ने एक रात की मोहलत क्यों मांगी थी? ये हमारे लिए दर्स है, हमारे लिए पैगाम है। आका हुसैन ने एक रात की मोहलत इसलिए मांगी थी कि हुसैन एक रात और अपने रब की इबादत कर ले, एक रात और अपने रब की इबादत करे, और एक रात अपने रब को याद कर ले। आज हम ऐशो आराम में रह के अपने रब को याद नहीं करते। देखो आका हुसैन तलवारों के साए में भी अपने रब को याद कर रहे हैं। आका हुसैन सुबह को जब जंग के तरीके शुरू हुए, कराम आपने शहादतें सुनी हैं, आप सुनते रहते हो, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से आपने सुना, और इलाके में जलसे होते हैं, शहादतें आप सुनते रहते हो। इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिलता है, वो पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊं और अपनी तकरीर को खत्म करूं। आओ जरा देखो मेरे आका इमाम हुसैन की तरफ सबसे पहला तीर जिसने चलाया था वो अमर इब्ने साद था। ये कौन अमर इब्ने साद है? ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है, जो अशराए मुबश्शरा में से हैं, जिन्हें दुनिया में नबी ने जन्नती होने की बशारत दी। जो मैदान उहद में अपने सीने पे तीर रोक रहे थे, आका दुआ कर रहे थे, इर्मी या साद फिदा का अबी व उम्मी, ये साद तीर चलाओ तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। क्या इनकलाबात हैं जमाने के, जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो।
जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा हुसैन की तरफ तीर चलाता है। हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, हजरत ज़हीर ने जामे शहादत नोश किया, मुस्लिम इब्ने औसजा ने जामे शहादत नोश किया, उनके बाद उनके बेटे ने जामे शहादत नोश किया, हजरत हुर ने जामे शहादत नोश किया। यके बाद दीगर जो आपके दोस्त थे, अजीज थे, अहबाब थे, एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके। 4 लोग बाहर के थे, एक हजरत हुर, एक उनके भाई और एक उनका गुलाम और एक वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी। ये 4 लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया और 18 या 19 घर वाले बताए जाते हैं इमाम हुसैन के। आओ जरा देखो, अमर इब्ने साद ने कहा, लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब ये यजीद की बैत करेंगे, क्योंकि औलाद का गम अलग होता है। मेरे आका हुसैन का जवान बेटा मैदान करबला में आया, जिसे दुनिया हजरत अली अकबर के नाम से जानती है। हजरत सकीना ने कहा, ए चचा अब्बास, आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, मुझे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे, मेरे चचा पानी ला दीजिए। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, तलवार हाथ में ली, चलने लगे तो हजरत इमाम हुसैन ने रोक लिया। ए मेरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे लश्कर के सिपे सालार हो, तुम मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो। हजरत अब्बास बोले, मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बड़ी तेजी के साथ बता के तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर के नहरे फुरात की तरफ पहुंचे और जैसे ही आप नहरे फुरात पर पहुंचे, आपने पानी को मशकीज़े में भरा, चलने लगे तो शिम्र ने ऐलान किया, ए लोगों, एक कतरा भी खेमे में हुसैन के पानी का पहुंचना चाहिए, वरना नतीजा कहरे जुलजलाल की शक्ल सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से तीर चलने शुरू हो गए। हजरत अब्बास का दाहिना बाजू एक शकी की तलवार से कलम हो गया, बाया बाजू भी आपका कलम हो गया। मशकीज़े के तस्मे को दांतों से दबा लिया था। नजर थी उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदा दे रही थी। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ा के आना चाह रहे थे कि चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, आवाज लगाई, या आखी अदरिकनी, ए मेरे भाई हुसैन, आपका भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई अब्बास को संभालिए। हुसैन के कानों में जब आवाज पहुंची, आप घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए। जवान भाई के जिस्म पे नजर पड़ी आका हुसैन की, तड़प गए, मेरे हुसैन, मेरे भाई अब्बास, तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपे सालार कौन होगा? हजरत अब्बास की चंद सांसें हैं, बोले, भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी बेटी सकीना से कहना कि वो चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम न आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। हजरत अब्बास को उठाया मेरे हुसैन ने, ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन ने पूरी जिंदगी की ताकत इकट्ठा कर ली हो। हजरत अब्बास को लाके सकीना के सामने लिटाया, ऐ मेरी बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं, बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। हजरत अब्बास सकीना सामने बैठी है, अपने सर को हिला के कहती है, चचा इतना नाराज हो गए आप, चचा इतना रूठ गए आप, चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा रूठ कर नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। मेरे आका इमाम हुसैन ने बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया, तब मेरा हुसैन सोचता है, अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। आका हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवारें चलते देखे तो सब्र करना। आका हुसैन अपनी बीबी शहरबानों को सब्र की वसीयत फरमाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं। बाप हो तुम औलाद वाले हो, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। बेटी से कहा, मेरी बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत की शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सुना कर गए, अपना सौदा बेचकर
कर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। ये मेरे आका इमाम हुसैन है, मैदान करबला में आए, इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया, फिर उसके बाद तलवार उठाई, कई बहादुरों को जहन्नम में पहुंचाया। हुसैन की तलवार थी, एक करवा टापर वालों, हुसैन की तलवार मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही थी, साइका की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई जो हुसैन की तलवार रुक नहीं रही थी, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी, भूख की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, वो हुसैन तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, पर्चियां चल रही हैं सजदा कर रहा है। हुसैन के मानने वालों, आज इस पैगाम प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर जाओ कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी सजदा नहीं छूटना चाहिए। हुसैन के सच्चे गुलाम बन के दिखाओ, हुसैन के सच्चे आशिक बन के दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन से मोहब्बत का दावा करो और नमाजें छोड़ते रहो। इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर शराबे पीते रहो, इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर जुआ खेलते रहो, इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर दूसरों का हक मारते रहो। मेरे आका हुसैन मैदान करबला से एक पैगाम हमको देकर जा रहे हैं कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए, रब की इबादत मत छोड़ना। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन करबला के मैदान से आखिरी सजदा करके गए और क्या पैगाम दे करके गए। हुसैन जब अपने घोड़े पे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। हुसैन जैसे ही सजदे में पहुंचे, सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया गया। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज में जब सजदे में जाता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। क्यों कुर्ब मिलता है? इसलिए कुर्ब मिलता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे की हालत में जाकर के अपने नाना के नाम की तस्वीर बन गए। नबी ने फरमाया, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और शहादत के बाद मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसीलिए कयामत तक यही सदा आती रहेगी, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। सब्र पे तस्लीम पे न क्यों जाए जो सर
सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। आप ये प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। निज़ामे हक प्रोडक्शन इस्लामिक उर्दू यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें। निज़ामे हक प्रोडक्शन एक रूहानी सफर है जहां आप सुन सकते हैं दिल को सुकून देने वाली नातें, असरदार इस्लामी तकरीरें, सच्चाई से भरपूर बयान, दिल को छू लेने वाली कव्वालियां और इस्लामी मूवीज। हमारा मकसद है हक की बात को हर दिल तक पहुंचाना। जुड़िए हमारे साथ इस नूरानी सफर में। खुदा हाफिज।